بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس فرسٹ ایئر میتھمیٹکس میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے۔ ایکسرسائز 1.1 کے اینڈ پہ یہ کچھ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے جس میں اکثر اسٹوڈنٹس غلطیاں کرتے ہیں، اور اس طرح کے ایم سی کیوز ایٹا میں یا نسٹ وغیرہ کے ٹیسٹ میں آتے ہیں۔ تو یہ آپ یاد رکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس دو ریئل نمبرز اے اینڈ بی ہے اور دونوں پازیٹیو ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا جو اسکوائر روٹ ملٹیپلیکیشن ہے وہ ہم کس طرح کریں گے؟ انڈر روٹ اے انڈر روٹ بی، اس کو ہم ایک انڈر روٹ میں لکھ سکتے ہیں اور یہ انڈر روٹ اے بی کے برابر ہے۔ لیکن اگر دونوں اے اور بی نیگیٹو ریئل نمبر ہو اور دونوں اسکوائر روٹ ملٹیپلیکیشن ہو تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اگر ہم اس طرح کریں گے تو یہ رانگ ہوگا۔ دیکھیں جس طرح میں نے یہاں پہ انڈر روٹ مائنس اے اور انڈر روٹ مائنس بی، اگر اس کو ہم ریئل کی طرح ملٹیپلائی کریں گے تو جو جواب آئے گا وہ بھی انڈر روٹ اے بی ہے، جو کہ رانگ ہے۔ تو اس کو آپ کس طرح کیلکولیٹنگ کریں گے؟ دا کریکٹ کیلکولیشن از انڈر روٹ مائنس اے انڈر روٹ مائنس بی۔ تو اس جب انڈر روٹ میں نیگیٹو آتا ہے تو اس کو ہم آیوٹا میں کنورٹ کرتے ہیں، تو اس کو ہم اس طرح لکھیں گے انڈر روٹ مائنس ون انڈر روٹ اے انڈر روٹ مائنس ون انڈر روٹ بی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ انڈر روٹ مائنس ون جو ہے وہ آیوٹا کے برابر ہے، اسی طرح سے اس کی جگہ بھی آیوٹا پٹ کرے تو آیوٹا انٹو آیوٹا، آیوٹا اسکوئر کے برابر ہے، اور آیوٹا اسکوئر ہمارے پاس مائنس ون کے برابر ہوتا ہے، تو یہ مائنس اے بی کے انڈر روٹ اے بی کے برابر ہے۔ تو یہ کریکٹ کیلکولیشن آپ اس طرح کریں گے۔ اس کا اگر ہم ایک ایگزامپل لیں، اگر ہمارے پاس دو نمبر ہے انڈر روٹ مائنس ٹو انڈر روٹ مائنس تھری، اگر ہم اس کو پازیٹیو ریئل نمبر کی طرح کیلکولیٹ کریں گے تو یہ رانگ ہوگا۔ اس کو آپ کس طرح کریں گے؟ جس طرح اس سے پہلے ہم نے یہ کیلکولیشن کیا، انڈر روٹ مائنس ون کو اس سے الگ کرے۔ سملرلی یہاں پہ جو مائنس انڈر روٹ ہے تو اس کو بھی آپ انڈر روٹ مائنس ون اس طرح لکھ کے، اور انڈر روٹ مائنس ون کی جگہ پھر آپ آیوٹا پٹ کرے، آیوٹا کو ملٹیپلائی کرے آیوٹا اسکوئر۔ اب یہ دونوں جو ریئل نمبرز ہیں ہمارے پاس انڈر روٹ میں، تو یہ دونوں پازیٹیو ہے، تو اس کو ایک انڈر روٹ میں پھر ہم لکھ سکتے ہیں، اور ایوٹا اسکوئر مائنس ون کے برابر ہوتا ہے تو یہ ہوگا مائنس انڈر روٹ سکس۔ اس طرح کے آپ کیلکولیشن کریں گے، یہ بات آپ ذہن نشین کریں، ٹھیک ہے۔ اب کچھ پراپرٹیز ہے آپ کمپلیکس نمبر جس کو ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کی مدد سے پھر اس کو ہم ایکسرسائز میں اس پر کویسچن سالو کریں گے۔ ایڈیشن از کموٹیٹیو، کمپلیکس نمبر کا جو ایڈیشن ہوتا ہے وہ کموٹیٹیو ہوتا ہے۔ جس طرح اگر ہمارے پاس دو کمپلیکس نمبر ہو Z1 اور Z2 تو کموٹیٹیو پراپرٹی ود ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن کیا ہے؟ Z1 پلس Z2 از اکول ٹو Z2 پلس Z1، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایڈیشن از ایسوسیٹیو، تو جو کمپلیکس نمبر کا ایڈیشن ہوتا ہے وہ ایسوسیٹیو ہوتا ہے ود ریسپیکٹ ٹو ایڈیشن۔ تو اگر ہمارے پاس تین کمپلیکس نمبر Z1 Z2 اور Z3 ہو، اگر اس پراپرٹی کی مدد سے اس کو ہم سالو کریں تو یہ کیا ہے؟ یہ ایسوسیٹیو پراپرٹی کہلاتا ہے۔ سملرلی ایگزسٹنس آف ایڈیٹیو آئیڈینٹی، ایڈیٹیو آئیڈینٹی کیا ہے؟ وہ زیرو ہے۔ زیرو کو اگر ہم کسی کمپلیکس نمبر کے ساتھ ایڈ کرے یا زیرو کے ساتھ کسی کمپلیکس نمبر کو ایڈ کرے تو اس پر کچھ فرق نہیں پڑتا، وہی Z1 آتا ہے، تو یہ زیرو کیا ہے؟ یہ ایڈیٹیو آئیڈینٹی ہے۔ اس طرح ایگزسٹنس آف ایڈیٹیو انورس، کمپلیکس نمبر میں ایڈیٹیو انورس جو ہے وہ بھی ایگزسٹ ہوتا ہے۔ ہر کمپلیکس نمبر کا اپنا ایک ایڈیٹیو انورس ہوتا ہے جو اس کا اپوزٹ سائن ہوتا ہے، یعنی Z1 اس کا ایڈیٹیو انورس کیا ہے؟ مائنس Z1۔ اگر مائنس Z1 ہے تو اس کا ایڈیٹیو انورس کیا ہے؟ Z1۔ تو اس کی پہچان کیا ہوگی؟ اگر ہم دو کمپلیکس نمبر کو آپس میں پلس کرے اور ریزلٹ ہمیں زیرو دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کا ایڈیٹیو انورس ہے، ٹھیک ہے۔ پراپرٹیز آف ملٹیپلیکیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹیپلیکیشن از کموٹیٹیو، کمپلیکس نمبر کا جو ملٹیپلیکیشن ہوتا ہے وہ بھی کموٹیٹیو پراپرٹی ہولڈ کرتا ہے، یعنی اگر ہمارے پاس دو کمپلیکس نمبر ہے Z1 Z2 تو کموٹیٹیو پراپرٹی اس طرح ہم لکھیں گے Z1 ڈاٹ Z2 از اکول ٹو Z2 ڈاٹ Z1۔ اسی طرح ملٹیپلیکیشن از ایسوسیٹیو، کمپلیکس نمبر کا جو ملٹیپلیکیشن ہے وہ ایسوسیٹیو پراپرٹی بھی ہولڈ کرتا ہے۔ اس میں ہم تین کمپلیکس نمبرز لیتے ہیں تو Z1 انٹو Z2 Z3، Z2 Z3 کو پہلے ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں، اس سے جو ریزلٹ آتا ہے اس کو Z1 کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں۔ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہم پہلے Z1 Z2 کو ملٹیپلائی کرتے ہیں اور جو ریزلٹ آتا ہے اس کو پھر Z3 کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔
तो अब अच्छा, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन एडिशन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन एडिशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर एडिशन। वो इस तरह है z1 n2 z2 प्लस z3। तो राइट हैंड साइड पर हम क्या करते हैं, z1 को z2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं प्लस z1 को z3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किए हैं उस पर हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं कि if z1 is equal to 2 plus iota and z2 is equal to 1 minus iota, then verify the commutative property with respect to addition and multiplication। हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हैं, ठीक है, और हम क्या करेंगे, हम इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लेते हैं, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। तो हम वी टेक लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट z1 प्लस z2 और इसमें वैल्यूज पुट करते हैं जो यहाँ पे हमें दिए हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं, और एक्सरसाइज 1.1 के जो लिंक्स है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए हैं, आप इसको प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रियल को रियल के साथ 2 प्लस 1 और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ प्लस करें आयोटा माइनस आयोटा, तो ये बराबर है 3 प्लस 0 आयोटा। ये हमने क्या किया, राइट हैंड साइड फाइंड किया। अब सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, अब हम राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं, z1 प्लस z2 प्लस z1 को लेते हैं, z2 प्लस z1, और इसमें वैल्यू पुट करते हैं, पहले z2 को पुट करते हैं प्लस फिर z1 को, और इसी तरह से इसमें रियल के साथ और इमेजिनरी के साथ प्लस करते हैं। 1 प्लस 2 3 आता है, और माइनस आयोटा प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो कंक्लूजन क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। तो इस तरह ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है वो वेरीफाई हो। अब हम आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की तरफ, z1 डॉट z2 इज इक्वल टू z2 डॉट z1। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं z1 डॉट z2 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। एक्सरसाइज 1.1 में हमने डिटेल से प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो सीखे थे, यहाँ पर भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं। 2 को 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें और आयोटा को भी 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें, सो 2 1 जा 2 माइनस 2 आयोटा, और ये आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनस 2 आयोटा और प्लस आयोटा, इसको प्लस करें तो माइनस आयोटा आता है, और इस आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 पुट करें, फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1 आएगा, और 2 प्लस 1 रियल्स को आपस में प्लस करें, 3 माइनस आयोटा। इस तरह हमने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड किया जो कि 3 माइनस आयोटा के बराबर है। राइट हैंड साइड हम लेते हैं z2 डॉट z1, और पहले z2 पुट करते हैं और फिर z1 को पुट करते हैं, 1 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1 इंटू 2 प्लस आयोटा और माइनस आयोटा को। अच्छा, अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं z2 एंड z1 जो कि 1 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा, तो 1 को मल्टीप्लाई करें 2 प्लस आयोटा के साथ और माइनस आयोटा को भी 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो ये 2 1 जा 2 प्लस आयोटा माइनस 2 माइनस आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे ये जो 1 माइनस 2 आयोटा है ये बराबर है माइनस आयोटा के, यहाँ पे जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह माइनस 1 पुट करें, माइनस इंटू माइनस प्लस 1, तो ये 2 प्लस 1 जो है ये बराबर है 3 के 3 माइनस आयोटा के। तो यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर 3 में जो लेफ्ट हैंड साइड हमने फाइंड किया वो भी 3 माइनस आयोटा के बराबर है, जो राइट हैंड साइड हमने फाइंड किया वो भी 3 माइनस आयोटा के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है वो भी होल्ड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हैं, z1 z2 एंड z3, और हमें वेरीफाई करना है
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट हम प्रूफ करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, z1 प्लस ब्रैकेट z2 प्लस z3। हम फर्स्ट वी टेक लेफ्ट हैंड साइड एंड पुटिंग दी वैल्यूज। ठीक है, z1 की जगह अपनी वैल्यू पुट करें। देखें ये z2 प्लस z3 ब्रैकेट में है, तो हम पहले ये ऑपरेशन करेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम z2 और z3 की वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट हटा दे इससे, फिर इसको रियल के साथ 3 प्लस 2 5 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस आयोटा के बराबर है। ठीक है, अब हमने z2 प्लस z3 को सिंप्लीफाई किया। अब इसको z1 के साथ ऐड करें, -1 प्लस आयोटा प्लस 5 प्लस आयोटा। तो रियल को रियल के साथ कंबाइन करें, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंबाइन करें। ठीक है, 1 -1 प्लस 5 4 और आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा। तो इस तरह हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का लेफ्ट हैंड साइड फाइंड किया, जो कि 4 प्लस 2 आयोटा के बराबर है। अब हम इसका राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, तो z1 z2 z3 की वैल्यू यहाँ पे मैंने लिया है। सबसे पहले ये ब्रैकेट वाला जो ऑपरेशन है ये हम करेंगे, z1 प्लस z2 को प्लस करेंगे और फिर इससे जो सिंप्लीफाई आंसर आएगा इसको z3 के साथ फिर प्लस करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे z1 और z2 के वैल्यू मैंने पुट किए हैं। रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंबाइन करें, तो ये 2 माइनस आयोटा आएगा। ठीक है, अब ये जो सिंप्लीफाइड कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको आप z3 के साथ प्लस करें। ये 2 माइनस आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा, रियल को रियल के साथ 2 प्लस 2 और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा। इसको कंबाइन करें और इसको सिंप्लीफाई करें, 4 प्लस 2 आयोटा। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में देखें कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है 4 प्लस आयोटा के, जो राइट हैंड साइड है वो भी 4 प्लस आयोटा के बराबर है। तो कंक्लूजन हमारा क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का वो राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड होता है। इस तरह अब हम आते हैं नो वी प्रूव दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की तरफ। तो बिल्कुल इसी तरह से और भी है, लेकिन इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं z1 इंटू z2 डॉट z3। तो ये जो बड़ा ब्रैकेट वाला ऑपरेशन है इसको हम पहले करते हैं, z2 और z3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये 3 जो है इसको मल्टीप्लाई करें 2 प्लस 3 आयोटा से, और -2 आयोटा जो है इसको भी मल्टीप्लाई करें 2 प्लस 3 आयोटा के साथ। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें, रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। ये 9 आयोटा माइनस 4 आयोटा है, ये 5 आयोटा के बराबर है। यहाँ पे जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह हम -1 पुट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये जो रियल 6 प्लस 6 इसको ऐड करें 12 प्लस 5 आयोटा के बराबर है। ठीक है, अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, -1 को 12 प्लस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करें और ये प्लस आयोटा जो है इसको भी इससे मल्टीप्लाई करें। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, -12 माइनस 5 आयोटा प्लस 12 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करें। ठीक है, तो ये -12 माइनस 5 रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंबाइन करें। तो -12 माइनस 5 -17 और ये +7 आयोटा। इस तरह हमने ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मालूम किया। राइट हैंड साइड पे हम पहले ऑपरेशन करते हैं, z1 और z2 को मल्टीप्लाई करते हैं। इससे जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा इसको फिर z3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने ये z1 की वैल्यू ली है, ये वाला z1, और ये क्या है z2। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये -1 जो है इसको आप मल्टीप्लाई करें 3 माइनस 2 आयोटा के साथ, और ये प्लस आयोटा है जो है इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इसको अपनी जगह पे लिखें। तो यहाँ पे देखें ये -3, ठीक है, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 है, तो ये माइनस इंटू माइनस +2 आएगा। अब रियल को रियल के साथ कंबाइन करें, या -3 + 2 -1 के बराबर है, और 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा जो है ये 5 आयोटा के बराबर है। तो z1 z2 को हमने सिंप्लीफाई किया। अब z3 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये जो -1 है इसको 2 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें,
پھر یہ جو پلس 5 آئیوٹا ہے اس کو بھی 2 + 3 آئیوٹا سے ملٹیپلائی کریں، تو یہ -2 اور یہ جو آئیوٹا اسکوئر ہے یہ -1 کے برابر ہے، -15 تو -2 اور -15 کو کمبائن کریں اور یہ 3 آئیوٹا + 10 آئیوٹا کو کمبائن کریں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ یہ -17 + 7 آئیوٹا، تو جو ایکویشن نمبر 1 ہے اس کو آپ دیکھیں، یہ بھی -17 + 7 آئیوٹا کے برابر ہے، جو ایکویشن نمبر 2 ہے یہ بھی -17 + 7 آئیوٹا کے برابر ہے۔ اس طرح ہم ایکویشن 1 اور 2 سے یہ کنکلوژن لیتے ہیں کہ جو لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے وہ رائٹ ہینڈ سائڈ کے برابر ہے۔ اس طرح یہ جو ہمارا ایسوسیٹیو پراپرٹی ود ریسپیکٹ ٹو ملٹیپلیکیشن تھا یہ ہولڈ ہوا۔ تو آج کے لیے اتنا لیکچر کافی تھا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں۔ اگر یہاں پر بھی کسی بھی اسٹوڈنٹس کو کوئی مسئلہ ہو مطلب تو وہ کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔